trying to conceive but unsuccessful, have been advised IVF or IUI, want a healthy and intelligent baby? Join us to fulfill your dream of becoming parents. A free expert guidance program on holistic IVF and IUI, scientific and spiritual approach, golden steps for successful IVF and IUI, daily online live sessions by expert medical doctors and spiritual teachers on decoding journey of IVF, tips for successful IVF, stress management, emotional well-being, fertility boosting diet, exercise and pranayam, counseling, meditation, sleep management, art therapy, music therapy, instrumental music meditation, value stories, Gita Gyan and scriptures, Ayurvedic and naturopathy detoxification, Garbhadhan. Starting from 1st November, meet us virtually from Monday to Saturday between 8 to 9 pm and Sunday between 11 am to 12 pm. Live on Zoom and YouTube channel Holistic IVF. Zoom meeting ID 919 519 84746. Password Happiness. For more details, call us on 9158 927 937 or 98206 16509 or 9833 801 570. You can mail us on holisticivf@gmail.com. Visit us on www.divinegarbhasanskar.in. Subscribe to our YouTube channel, Holistic IVF. Organizers, Medical Wing Brahmakumaris, Divine Sanskar Research Foundation. Shanti, warm welcome to all of you in our today's session. आज के हमारे साथ जुड़े हुए हमारे स्पीकर है डॉक्टर गौतम लोधिया जी और आज का हमारा टॉपिक है टिप्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ गुड एम्ब्रियो. Before we are going to start our session, I would love to introduce Dr. Sir. Dr. Gautam Sir, he is a MBBS and MS. He is a general surgeon, fellow in oncosurgery, diploma in diabetology. He is practicing as a consultant in surgical oncology, endoscopist, laparoscopist, and diabetologist at Haveri. He is honorary oncosurgeon at Navanagar Cancer Hospital, Hubli. He's completed his UG at Platinum MC Bijapur PG at JSS MC Mysore and oncosurgery at Meerut, diabetology at Vellore. He is a member of medical wing of Brahma Kumaris since 2009 and regularly teaching meditation at Pyramid Meditation Center at his hospital and conducting various programs for awareness on diabetes, de-addiction, cancer, stress management in association with BK's Rotary Club and IMA. He is presently is a President Indian Medical Association Haveri. So welcome sir in our today's session. आज के हमारे सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर गौतम सर. आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ जो भी पार्टिसिपेंट्स आज के सेशन में जुड़े हैं आप सभी का भी बहुत बहुत आज के सेशन में स्वागत है. आज के हमारे टॉपिक से रिलेटेड सर हमें गाइड करेंगे और बहुत सारी अवेयरनेस भी देंगे जिससे हम आगे के इस जर्नी में बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो पाए. ओवर टू यू सर. थैंक यू. Thank you. Om Shanti. Om Shanti sir. शेयर करेंगे? Yes.
दिख रहे हैं स्लाइड्स? यस सर, दिख रहा है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है टिप्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ गुड एम्ब्रियो, राइट? तो इसको हम सब को अभी प्रेगनेंसी के लिए एम्ब्रियो बेसिक जरूरी होता है, तो उसको हम कैसे करें सही अच्छा एम्ब्रियो और अच्छा बेबी होने के लिए। पहले तो इसको हम बोलते हैं कि क्वांटम हीलिंग, दैट इज फर्स्ट वी विल अलाइन आवर बॉडी विथ आवर माइंड एंड स्पिरिट। हम लोग खाली बॉडी के ऊपर ध्यान देंगे तो सक्सेस रेट कम होएगा। हमारा माइंड और स्पिरिट भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। गिव अटेंशन टू आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। हम क्या सोचते हैं, हमको क्या महसूस होता है और हमारे इमोशंस क्या है, उसके ऊपर हमको ध्यान देना जरूरी है। तो वो हमारा वाइब्रेशंस और एनर्जी को हमको बढ़ाना है, हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करना है टू नरिश ऑल आवर एनर्जी लेवल्स। लाइक चक्रास है, ऑरा है, हमारे कोशास है, उसको सब सही करने के लिए लाइफस्टाइल को हमको चेंज करना है। सब हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेस को क्लियर करना है। की फेथ इन सुप्रीम सोल, दैट इज भगवान में विश्वास रखना है कि हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। सो भगवान को या हमारी लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है उसके ऊपर हमको ग्रेटिट्यूड में रहना जरूरी है। तो अभी जो एनर्जी लेवल्स बोल रहा था, ये सारा एनर्जी लेवल्स है। जैसे आप जानते हो कि जैसे आयुर्वेदिक में बोलते हैं अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ऐसा ही फिजिकल बॉडी, ब्रेथ बॉडी, इमोशनल बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी और ब्लिस बॉडी, ये सारा एनर्जी लेवल्स है हमारे। ये सारे एनर्जी लेवल अगर हमारे क्लियर हैं तो चांस ही नहीं है कि कंसीव नहीं हो। तो ये सारे एनर्जी लेवल से ही हमारे बॉडी में चेंजेस स्टार्ट होते हैं। ओके, तो पहले हम ये समझे कि क्या है एग्जैक्टली, क्यों करते हैं इसको। हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस बोलते हैं। तो इसको हमको अगर सही रखते हैं तो मेन प्रॉब्लम हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम जो रहते हैं, लिटिल लिटिल प्रॉब्लम्स कभी कभी हमारे टेस्ट में नॉर्मल आ सकते हैं, पर टेस्ट में नॉर्मल आया और इसमें थोड़ा माइन्यूट भी रहा तो कभी कभी हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद भी कभी कभी वो पकड़ता नहीं है एम्ब्रियो को। स्लाइड मूव नहीं हो, क्या कैन यू सी माय स्लाइड? देख रहे हैं सर, फर्स्ट स्लाइड दिख रही है हमें, और अच्छा। आप चाहे तो आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं। पर मैंने चेंज किया है स्लाइड्स। नहीं, हमें टिप्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ गुड एम्ब्रियो वाली स्लाइड दिख रही है। शेयर करता हूँ और एक बार, मुझे लगता है या मे अभी चेंज हुआ। या अभी दिख रहा है, राइट। ओके, हाँ हाँ, थैंक यू सर। नाउ यू आर फाइन। यस सर, वी कैन। तो अलाइनमेंट ऑफ हमारे बॉडी, माइंड और स्पिरिट का मैंने बात किया, थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस का वाइब्रेशन हमारा बढ़ाना है, हमारा लाइफस्टाइल को चेंज, हमारा एनर्जी लेवल चेंज करना है, चक्रा और कोशास के हिसाब से हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेस निकालने हैं, भगवान में विश्वास रखना है और हमको प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड करना है। हमारे ये सारे एनर्जी लेवल्स हैं, जो एनर्जी लेवल्स अभी दिख रहा है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ, तो ये सारे एनर्जी लेवल्स को हमको कवर करना है, इसको क्वांटम हीलिंग हम बोलते हैं। नॉर्मली प्रॉब्लम्स क्या होता है, जो प्रेगनेंसी होने के लिए ये जो प्रॉब्लम है, ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स ज्यादा रहते हैं, उसकी माइन्यूट भी चेंजेस होते हैं, तो कभी कभी गर्भधारण नहीं होता है। इसलिए हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस को हमको ठीक रखना है। जो पिट्यूटरी का स्थान है वही स्थान के आगे ही हमारा आत्मा का स्थान है, तो उसको अगर हमको स्टिमुलेट करना है तो हमारे आत्मा को खुशी से रहना जरूरी है, या आत्मा को हम डेली मेडिटेशन से हम उसको निहारना जरूरी है। तो ये सारा मेडिकल लैंग्वेज में है, इसको हम ये नहीं करते, ये शायद आपको समझ में आए। तो इसमें हाइपोथैलेमस इधर है, ये पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी से ओवरी को जाता है और ओवरी के हिसाब से ओवरी यूट्रस में ओम आके इम्प्लांट होता है। तो ये 6 डेज का प्रोसेस है, इधर से जब भी ओम निकलता है और जब तक ये गर्भाशय में आके स्टिक होने के लिए 6 दिन का प्रोसेस होता है। ये सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, ऐसा सेल डिवीजन रहता है।
तो इसमें क्या करना, पहले हम बॉडी के ऊपर ध्यान देंगे और बाद में माइंड और बाद में करें। तो बॉडी के ऊपर क्या, अभी न्यूट्रिशन हमको एम्ब्रियो बढ़ाने के लिए हमको कैसे टाइप के लेना चाहिए। एक वॉलनट, अखरोट है, ससमे, तिल के सीड, बार्ली, टोफू, सोयाबीन, सीवीड्स, बीन्स, व्हीट ग्रास और ऑर्गेनिक फूड्स हमको लेना चाहिए। अल्कलाइन फूड हम ज्यादा ले तो बेहतर है, एसिडिक फूड से जैसे नॉन सिट्रस फूड से जो खट्टे हैं उसको थोड़ा कम करें। वेजिटेबल्स में बायोफ्लेवोनॉइड रहते हैं जिसकी वजह से ब्लड वेसल ज्यादा बढ़ते हैं, और जो एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल ज्यादा और ओवरी में ब्लड वेसल्स नए नए पैदा होते हैं, उसकी वजह से उनको फूड मिलता है और ग्रोथ के लिए चांस ज्यादा रहता है। स्प्राउट्स हमको ज्यादा लेना है, सीरियल ग्रासेस में व्हीट और बार्ली लेना है, हर्ब्स में ब्लैक कॉकस और वैलेरियन रूट लेना है। मेन इंपॉर्टेंट है हमारा सलाइवा अल्कलाइन है, जब भी हम भोजन लेते हैं तो उसको बरोबर चबाना जरूरी है। ज्यादा जितना चबाएंगे उतना ज्यादा हम अल्कलाइन फूड अंदर लेंगे। और वो टाइम में हमको पानी ज्यादा नहीं पीना है, खाते वक्त पानी हमको ज्यादा नहीं पीना है क्योंकि अल्कलाइन कम हो जाएगा। और एसिडिक फूड को हमको लेना नहीं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट से मोस्ट ग्रेन्स हैं और नॉन वेजिटेरियन। बहुत सारे एसेंशियल फैटी एसिड हमको लेने हैं, जैसे नॉन हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, फ्लैक्सीड है, पंपकिन सीड ऑयल है, सोया प्रोडक्ट्स है, रॉ नट्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, ब्रोकोली है, कॉलीफ्लावर, बीट, कैरट, केल, कैबेज, बाकी टर्निप। तो इसमें एक ध्यान देना है, जो भी ऑयल हम यूज करते हैं लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, काफी दिन हम अगर हीट और लाइट को एक्सपोज करते हैं तो वो ट्रांस फैटी एसिड में कन्वर्ट होते हैं विच आर टॉक्सिक। तो ज्यादा टाइम बहुत सारा लेके आके रख के उसको स्टोर करने से लिमिटेड क्वांटिटी में लाना बेटर है। हीट को एक्सपोज करना कम और लाइट को कम एक्सपोज करना जरूरी है। बेकरी प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं लेना है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड से क्लीन द ब्लड ऑफ द फैटी एसिड, कुछ भी फ्री फैटी एसिड जो ब्लड में है उसको क्लीन करेगा, क्लॉटिंग को कम करेगा, ब्लड फ्लो हमको ओवरी और यूट्रस को ज्यादा करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा, और नेचुरल किलर सेल्स बोल के रहते हैं जिसको रिड्यूस करेगा। क्यों रिड्यूस, इससे क्या होगा, एम्ब्रियोस को इम्प्लांटेशन यूट्रस में जाके उसको चिपकने के लिए आसान होता है और फीटल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। सप्लीमेंट्स टू डाइट, क्या हम एडिशनल सप्लीमेंट्स ले सकते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स लाइक विटामिन ए, सी, के, बी कॉम्प्लेक्स, जिंक और सेलेनियम हम ले सकते हैं। बी पोलन और रॉयल जेली, मतलब ये जो क्वीन बी रहती है उसको रॉयल जेली वो लोग खिलाते हैं, जिसकी वजह से उसको बहुत सारा बच्चे पैदा होते हैं। तो उसमें अमीनो एसिड ज्यादा रहते हैं, विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम ज्यादा रहते हैं। ब्लू ग्रीन अलगी लाइक स्पिरुलिना है, क्लोरेला है, वो हमको काम आएगा। उससे क्या होगा, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम और ब्लड प्यूरिफिकेशन, हमारा मेटाबॉलिज्म सही होगा और हमारा टिश्यूज कुछ डैमेज है उसको रिपेयर मिलता है। व्हीट ग्रास या बार्ली ग्रास हमको ब्लड नरिशमेंट के लिए होता है, इम्यूनिटी। I think, sir, join over. Can you see me now? Yes, sir. Actually, I think आप मतलब ग्रुप से निकल गए थे। हाँ, अचानक ऐसे अभी स्लाइड्स देखो, आपको दिख रहा है स्लाइड? नहीं सर, हम आपको नहीं देख पा रहे और स्लाइड भी नहीं। तुमने ज्वाइन किया? दिख रहा हूँ। नहीं आई थिंक सर, आई थिंक ना 2 कनेक्शन ज्वाइन है ना, थोड़ा सा आपका वॉइस पे हम सुन नहीं पा रहे हैं। नहीं
अभी अभी देखो, नहीं हो रहा है। अभी दिख रहा है आपको? नो सर। स्लाइड शेयर तो मैंने किया है, मैं स्टॉप करके और एक बार कर रहा हूँ। नाउ नहीं, फिर क्या करूं? और एक बार बाहर जाके और एक बार करूं बहन जी? आप एंड मतलब ग्रुप से निकलेंगे और ज्वाइन होंगे फिर से? निकल के और एक बार ऐसे ओके करूं? ओके ओके, ट्राई हाँ, कीजिए। मे बी नेटवर्क इशू हो सकता है। पता नहीं, सडनली इधर तो फुल दिखा रहा है। और एक बार करो, ठीक है, एक मिनट। ओके, just wait for him, he will back soon. आई थिंक मैम, हाँ अब ज्वाइन। सर अभी हम आपको देख पा रहे हैं, अनम्यूट कीजिए। एक मिनट। यस, नाउ यू कैन अनम्यूट। हाँ, आपके दो कनेक्शन अगर पास में हो ना, तो एक कनेक्शन थोड़ा दूर रखेंगे तो आपका हमें वॉइस भी क्लियरली आएगा। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम। हाँ, अभी फुल स्क्रीन कीजिए तो हम देख पाएंगे। नाउ नाउ या वी कैन। थैंक यू। अच्छा, इधर तक आपको दिखा था ना? पी पोलन यस रॉयल जेली। यस सर, यस सर। हाँ, wheat grass हो। नेक्स्ट इज विटामिन B6, जो एक्सेस एस्ट्रोजन है उसको कंट्रोल करेगा, प्रोजेस्टेरॉन को सही मात्रा में रिलीज होने के लिए देगा और प्रोलैक्टिन लेवल को कम करेगा। कोएंजाइम Q10 है, जो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को असिस्ट करता है और ये पावर हाउस ऑफ एक एक कोष का पावर हाउस है। फोलिक एसिड इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन प्रिवेंशन ऑफ अबनॉर्मल सेल डिवीजन, और फोलिक एसिड खाने से अबॉर्शन होने का चांस बहुत कम रहता है। और कैल्शियम, ये सारे एडिशनल हमको लेना पड़ेगा। क्या नहीं लेना है? कैफीन, निकोटीन और अल्कोहल नहीं लेना है। अमेरिकन जर्नल ने ये बोला है कि निकोटीन इज 10 टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड इन यूट्राइन फ्लूइड देन प्लाज्मा। मतलब जैसे हमारे ब्लड में जो निकोटीन हम कॉफी या चाय या जो भी हम लेते हैं, तो 10 गुना ज्यादा यूट्राइन फ्लूइड में रहेगा हमारे ब्लड से। तो निकोटीन एजेस द ओवरीज एंड मेक्स एग्स रेजिस्टेंट टू द फर्टिलाइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि रेजिस्टेंस हो जाता है एग्स में, और एग्स वो खुल के नहीं आते हैं। अल्कोहल कोई कंज्यूम होता है आईवीएफ साइकिल के दौरान, तो फर्टिलिटी रेट 50% जितना कम हो रहा है, ये स्टडी में पता चला। कैफीन से ब्लड वेसल, जो ब्लड जाता है उसको कम करता है, क्योंकि ब्लड वेसल छोटा हो जाता है कैफीन लेने से। अगर आपको चाय पीनी है तो ग्रीन टी पी सकते हैं, पर उसमें खाली 20% लेस कैफीन रहता है। बेटर नहीं पिया हुआ
बेटर है, कोई भी, चाय है या कॉफी। अवॉइड अननेसेसरी मेडिकेशंस, कुछ भी पेन के लिए इधर उधर कुछ ना कुछ दर्द होता है बोल के लेते रहते हैं ऐसे काफी लोग, तो वो हमको नहीं लेना है। कोई डिकंजेस्टेंट सर्दी के लिए जो भी एक्स्ट्रा हम कुछ लेते हैं, और एक्सेस विटामिन सी हमको नहीं लेना है। कोई वजह लुब्रिकेंट्स को यूज नहीं करना है। और एक स्टडी में ये था कि अक्यूपंचर और अक्यूप्रेशर, जर्नल कॉल्ड फर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्शन मेडिसिन 2002 में वो ये बोलते हैं कि अक्यूपंचर कुड हेल्प वुमन undergoing fertility treatment conceive. They received one acupuncture session before embryo transfer and one after. तो 6 वीक के बाद अल्ट्रासोनोग्राफी उन्होंने किया तो डबल द चांस है प्रेग्नेंट होने का। और एक स्टडी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में ने किया है दिसंबर 2002, सेम जर्नल फर्टिलिटी स्टेरिलिटी, पेरिफेरल इम्पैक्ट ऑफ अक्यूपंचर इन इंप्रूविंग यूट्राइन आर्टरी ब्लड फ्लो हेंस एंडोमेट्रियल थिकनेस। जिसको एंडोमेट्रियम पतला रहता है उनके लिए भी ये काम आता है, और इम्प्लांटेशन के लिए काफी काम आएगा। ये अक्यूप्रेशर के पॉइंट है, इसको ध्यान से आप देख लो। ये पॉइंट पे अक्यूप्रेशर हम डेली करते हैं, एक 5-5 मिनट सारे पॉइंट्स पे हम अगर करते हैं तो हमारा इम्प्लांटेशन रेट ज्यादा होएगा, एम्ब्रियो उसका इम्प्रूवमेंट अच्छा रहेगा। इसका चाहिए तो पिक्चर भी निकाल के आप रख सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स आपको दबाने के हैं 5-5 मिनट डेली, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड करूं। ओके, स्ट्रेस इज अ फर्टिलिटी किलर। ओवरवर्क, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इमोशनल फैक्टर्स, वरी, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, ये मेन कारण है। हमारे बॉडी को फ्लाइट और फाइट मोड में लेके आता है। इंक्रीजेस कॉर्टिजोल, अदर न्यूरोकेमिकल्स, बॉडी रीडायरेक्ट्स ब्लड टू ब्रेन, आईज एंड मस्कुलोस्केलेटल। बॉडी को क्या लगता है स्ट्रेस है तो कुछ प्रॉब्लम है लाइफ में, तो वो क्या करेगा, अपना ब्लड सप्लाई सब ब्रेन, आईज और मस्कुलोस्केलेटल भागने के लिए वो रेडी करता है। मतलब हम जो बेसिक्स हमारा ये है कि ह्यूमन रेस स्टार्ट हुआ फाइट और फ्लाइट मोड, उसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड्स वगैरह होने की वजह से, तो ये ब्लड सप्लाई उधर जाता है तो यूट्रस और ओवरी में कम होएगा। और एड्रिनल लेवल ज्यादा होता है तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल का यूटिलाइजेशन कम हो जाता है। तो इसकी वजह से स्ट्रेस बहुत बड़ा किलर है। अभी स्ट्रेस के ऊपर एक स्टडी देखते हैं, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में अक्टूबर 2001 में किया था। इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन कंसेप्शन ऑफ आईवीएफ पेशेंट। 93% कम चांस है स्ट्रेस में अगर माता है तो बर्थ होने का, लाइव बर्थ होने का उतना ज्यादा फर्क पड़ता है। यू जस्ट इमेजिन 93% स्ट्रेस हमको नहीं कम किया तो हमको ये सारे प्रॉब्लम्स होने का चांस है। तो नॉर्मली कैसा रहता है हमारा एक एक इंडिविजुअल का एनर्जी, हमारा माइंडसेट, हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस, हमारे थॉट पैटर्न्स, हमारा परसेप्शन टुवर्ड्स द वर्ल्ड, इसके हिसाब से हम लोग एक एक हमारा यूनिक इंटरनल मैप हो जाता है। और वी वीव आवर एक्सटर्नल रियलिटी एंड रिस्पॉन्ड टू लाइफ एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू हमारे ये सारे एक्सपीरियंसेस के। हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसे शेप होके आइडेंटिटी होता है। तो ये सारे चीजों में हमको थोड़ा चेंजेस करना जरूरी है हमारा इंडिविजुअल एनर्जी बढ़ाने के लिए। तो कैसे करें हम? आपने सुना रहेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट लॉ ऑफ वाइब्रेशन आई थिंक आपने नहीं सुना रहेगा, क्योंकि ये बेसिक लॉ ऑफ यूनिवर्स है। एवरीथिंग मूव्स, नथिंग रेस्ट। ये आपने स्कूल में भी पढ़ा था कि सब मूव होता है, वाइब्रेशन है, सब है, पर उसके बाद कुछ इसके बारे में आपने सोचा नहीं है। तो वी लिव इन ओशन ऑफ मोशन, वाइब्रेशंस मस्ट बी अंडरस्टूड टू टेक कंट्रोल ऑफ आवर हेल्थ एंड रिलेशनशिप। इसके बारे में हमको जानना जरूरी है। High vibration things cause well-being in person and low vibration things cause disease. High vibration है तो अच्छा रहेगा, लो वाइब्रेशन है तो हमको डिसीज आने का चांस बहुत रहता है। नेगेटिव इमोशंस, थॉट्स, डिसऑर्डरिंग थॉट्स, बिलीफ है, पुअर हेल्थ है, लैक ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस है, इसकी वजह से वाइब्रेशंस हमारे कम हो जाते हैं। इसमें ध्यान देना, नेगेटिव इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और लैक ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। सफरिंग फ्रॉम वरी है, फियर, एंगर, नाइटमेयर, इमोशनल डिस्टर्बेंस, इमोशनल एग्जॉशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, क्रॉनिक डिसीज, इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही है, पैनिक अटैक, फियर ऑफ डेथ, ये सारे हमारे वाइब्रेशंस को कम करते हैं। नेगेटिव इमोशन से हमारा इम्यून लेवल कम होता है और हमारा वाइब्रेशन कम होता है। ये एक इमोशनल चार्ट है जिसमें आपको समझ में आएगा कि कौन से वाइब्रेशंस पे कौन सा इमोशन काम करता है।
तो हमको अगर हीलिंग में जाना है तो 480 हर्ट्ज के ऊपर जाना है। अभी वाइब्रेशन 0 इज डेथ, 1000 इज गॉड कॉन्शियसनेस, भगवान का कॉन्शियसनेस 963 हर्ट्ज है एक्चुअली। ग्रेटिट्यूड है वो 900 के ऊपर है, मतलब ग्रेटिट्यूड इज द हाईएस्ट वाइब्रेशन। तो हम लोग अगर पूरे दिन में लैक ऑफ इंटरेस्ट, डिप्रेशन में है, गिल्ट में है, तो ये काफी लोअर लेवल में है। ग्रीफ है, फियर है, जेलसी है 125, एंगर है 175, प्राइड है, ईगो है 175, और बाकी होप और एंथुसियाज्म है वो 400। उसके ऊपर हमको रहना जरूरी है अगर हमारा एम्ब्रियो अच्छा होना है। तो वी शुड बी ऑलवेज इन वाइब्रेशन ऑफ लव, हैप्पीनेस, पॉजिटिव बिलीफ, ये सारा हमको रहना जरूरी है। इसके ऊपर और रहे तो अच्छा है, जैसे पीस है, जॉय है, अप्रिसिएशन है और ग्रेटिट्यूड है। अगर आप एवरी एवरी आवरली आपको चेक करना है कि आप कौन से वाइब्रेशन में, मतलब आप कौन से इमोशंस में हो। अगर ये जो नीचे हैं 400 के नीचे वाले इमोशंस में आप रह रहे हो, तो चांसेस बहुत कम है आपको सक्सेस होने का। अगर 400 के ऊपर वाले जो भी इमोशंस है उसमें आप रह रहे हो, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट बहुत अच्छा रहेगा। तो कैसे हम वाइब्रेशन हम करें? हाईली क्लीन बॉडी इज हाईली इम्यून बॉडी। हाईली क्लीन मतलब सोप और शैम्पू का क्लीन, वो क्लीनलीनेस नहीं है। अंदर से मतलब एनर्जी लेवल्स क्लीन होना चाहिए। कैसे? बी इन ट्यून विथ 5 एलिमेंट्स। 5 तत्व हैं, उनके साथ हमारे पास ट्यूनिंग होना चाहिए। वो कैसे हम समझेंगे? ईट फूड इन राइट वे। कैसे खाना भोजन करना है, वो सही करना है। इंक्रीज योर वाइब्रेशन ऑफ योर होम। आपका घर का भी वाइब्रेशन आपको बढ़ाने का है। बैलेंस योर सर्काडियन रिथम और रेज योर हैप्पी हैबिट्स। ये सारा हम डिटेल में अभी सुनेंगे। तो 5 तत्वों के साथ हम कैसे रहें? डेली हमको अर्थ के साथ अगर हमको रहना है, पृथ्वी तत्व के साथ, तो हमको फ्रूट खाना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाना है, सलाड्स खाना है, स्मूदीज लेना है, और बेयर फुट वॉकिंग एटलीस्ट 10 to 15 मिनट चप्पल निकाल के मिट्टी में चलना है, कंक्रीट या टाइल्स के फ्लोर पे नहीं। पानी, वाटर के साथ अगर हमारा अच्छा रिलेशन चाहिए तो हम जूसेस है, काढ़ा है और अदर लिक्विड्स हमको पीना है। बट पीते वक्त थैंक्स बोलना है, उसको ग्रेटिट्यूड देना है, उसके बाद हमको पीना है। आकाश तत्व बढ़ाने के लिए स्पेस, मेडिटेशन करना है, और फास्टिंग आकाश तत्व बढ़ाने के लिए काम आता है। वायु तत्व एयर बढ़ाने के लिए हमको प्राणायाम है, योग है, हमिंग साउंड्स जैसे ओम जैसा है, वो साउंड हम करने की वजह से भ्रामरी है, उसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारे बॉडी में है वो रिलीज होता है। फायर मतलब अग्नि तत्व हमको बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज है, योगा है, सन बात है, सन गेजिंग है, वो सब हम कर सकते हैं। तो ये 5 तत्व है हमारे पूरे डे में, ये सारा होना जरूरी है हमारे एनर्जी लेवल हमको बढ़ा के रखने के लिए। राइट वे टू ईट फूड, कैसे भोजन खाया जाए? पहले तो वेजिटेरियन डाइट, नॉन वेजिटेरियन डाइट तो हम लेंगे नहीं क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी है। वेजिटेरियन डाइट और लाइव और फ्रेश फूड, जो भी चीज है, जो भी आपने पकाया है, उसको एटलीस्ट 3 घंटे के अंदर आपको ग्रहण करना है, उससे ज्यादा हमको नहीं करना है। और जितना लाइव रहा उतना अच्छा है। मतलब आप ही उधर ही आपके घर के आसपास, आपके घर में थोड़ा बहुत उगा के भी खाए तो और भी अच्छा है। ऑर्गेनिक रहा तो अच्छा है। पेस्टिसाइड जो भी रहता है तो उसको ध्यान देना है कि घर में आने के बाद बेकिंग सोडा में उसको एक 10-15 मिनट रखना है, बाद में नॉर्मल सॉल्ट वाटर में रखना है, बाद में नॉर्मल वाटर से उसको धोना है, उसके बाद उसको कंज्यूम करना है। नहीं तो फ्रेश आप खाने के लिए जाके फिर आपको केमिकल का तकलीफ नहीं हो, पॉइजनिंग नहीं हो। ग्रेटिट्यूड टू द फूड, वो एक अगर फ्रूट है या एक दाना बनने के लिए आपको है, आज चावल का दाना, उसको 2-4 महीना लगता है। वो फार्मर जो बोता है उसको, उसका एफर्ट रहता है। धरती, उसको सबको ग्रेटिट्यूड हमको देना है, सबको थैंक्स बोलना है, उसके बाद हमको भोजन ग्रहण करना है। ईट विथ माइंडफुलनेस मतलब हम खाते वक्त बात नहीं करना है, और परमात्मा की याद में हमको रह के हमको खाना है, और अपने साथ हम रहे, सही तरह से हम लोग चबाए। सही तरह से जब ये हम चबाते हैं तो हमारा अल्कलाइन फूड होता है, तो उसके हिसाब से हम करें, और भगवान के याद में हम खाएं, भगवान को थैंक्स बोले और भगवान की याद में खाएं। पैकेज फूड है, फास्ट फूड है, वो कुछ भी नहीं लेना है। अभी घर के वाइब्रेशन हम कैसे करें? साफ सुथरा रखना है, घर को साफ सुथरा रखना है।
जो भी पुरानी चीजें हैं जो 1 साल में आपने यूज नहीं किया है वो आप यूज नहीं करोगे। तो किसी की आप नहीं कर रहे हो तो किसी गरीब को या किसी को उसको दे दो, डोनेट कर दो। बहुत पुराना एनर्जी उधर रहा तो आपका वाइब्रेशन ऑफ आपका ये कम हो जाएगा। हीलिंग वाइब्रेशनल म्यूजिक बहुत सारे यूट्यूब में रहते हैं, वो अभी आप प्ले कर सकते हो आपके घर में बीच बीच में। बेल का साउंड, जैसे पूजा घर में बेल्स रहते हैं, वो भी बेल आप घर में थोड़ी देर बजाते मेडिटेशन करो या सॉन्ग कुछ भी गाना गाओ, भजन जैसा करो, उससे भी आपका वाइब्रेशन बढ़ता है। चाइम्स जो आते हैं, विंड चाइम्स आते हैं, उससे भी आपके घर के वाइब्रेशंस होते हैं। अग्निहोत्रा बोल के एक होम है, उससे भी आपका वाइब्रेशन होता है। मेन इंडोर पोल्यूशन मतलब अंदर, घर के अंदर का पोल्यूशन, इसके बारे में कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है। एक भले हमने पेंट भी लगाया तो भी उसको वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 से 3 साल तक वो हमारे इंडोर में आते रहते हैं। मतलब आज हमने पेंट लगाया तो 3 साल तक आपका इंडोर पोल्यूट होता रहता है वो पेंट की वजह से। अगर हम शैम्पू यूज करें, अगर हम सेंट यूज कर रहे हैं, अगर कोई भी केमिकल हम हमारे बॉडी को के लिए यूज कर रहे हैं, या घर में हम मॉस्किटो के लिए यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सारे चीजें इंडोर पोल्यूशन कर रही है। एसी है, सारी चीजें, जितना एयर होता है, जितना एयर आने जाने जैसा रहता है, जितना वेंटिलेशन रहता है घर में, उतना इंडोर पोल्यूशन कम होता है। तो इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि इंडोर पोल्यूशन हम कैसे कम करें। अभी ये हमारा सर्काडियन रिदम, मतलब हमारा बॉडी का एक एक टाइम पे क्या क्या हम करना चाहिए, अगर वैसा हम करते हैं तो हमारे एनर्जी लेवल ज्यादा रहते हैं, हमारे बॉडी का वाइब्रेशन ज्यादा रहता है। अभी आप खाली इसमें देखो कि जो सी हमको सोना कितने बजे, 10 बजे डीप स्लीप में हमको रहना जरूरी है। 7 बजे से हमको स्लो डाउन होना है। प्रिपेयर फॉर स्लीप बाय 8। 8 के बाद 12 बजे तक मेलेटोनिन सिक्रीशन ज्यादा होता है, मेलेटोनिन की वजह से हमको नींद अच्छी आती है। उसके बाद अगर 12 के बाद आप सोते हो तो मेलेटोनिन का इफेक्ट आपका कम हो जाता है। मेलेटोनिन अगर सिक्रीशन बराबर है तो हमारा हार्मोन लेवल और इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। अगर हमको सुबह एलिमिनेशन 4 बजे के बाद 3:30 बजे तक एलिमिनेशन 3 से 6 बजे तक रहता है, तभी मेडिटेशन करना है, विजुअलाइज करना है, हमको कुछ भी सोचना, क्रिएशन नया कुछ करना है तो वो टाइम पे करना है। हमको एक्सरसाइज 6 बजे के बाद करना है, तभी कॉर्टिजोल लेवल हमारे बॉडी में ज्यादा रहता है। 8 बजे तक हमको ब्रेकफास्ट कर लेना है और बाकी प्रिपरेशन फॉर द डे वगैरह। और मेजर मील हमारा 12:30 1 बजे तक खाना भोजन हो जाना चाहिए। और शाम का लास्ट मील टस्क मतलब सूर्यास्त के टाइम के रहना चाहिए। ये नेचर के रिदम्स के हिसाब से आयुर्वेद का बहुत सालों साल से ये चल रहा है। वैसे ही चाइनीज बॉडी क्लॉक उनका भी ऐसे ही टाइप का है, सिमिलर है, उसमें कोई फर्क नहीं है, खाली वो अपने हिसाब से एलिमेंट्स के हिसाब से वो लोग बोलते हैं और आयुर्वेद वात पित्त कफ के हिसाब से बोलते हैं। सिमिलर ही टाइम है, सिमिलर ही ये रहता है। तो उसके हिसाब से आपको रात में 12 से 2 बजे तक लिवर क्लींजिंग, गॉल ब्लैडर क्लींजिंग रहता है। उसके बाद लंग्स सुबह मेडिटेशन और प्राणायाम के लिए बहुत तेज रहता है। सुबह 5 से 7 एलिमिनेशन मतलब बड़ा अतड़ा काम करता है। 7 से 9 स्टमक काम करता है ब्रेकफास्ट के लिए। उसके बाद ब्लड, हार्ट वगैरह मतलब जो हमको मेन काम करना है दिन का, ये टाइम में हमको करना है। एक के बाद हम भोजन करते हैं तो छोटे आंतड़े में वो रेडी रहता है काम करने के लिए। और जो पेरिकार्डियम वगैरह है वो टाइम में हमको मेलेटोनिन ज्यादा सीक्रेट होता है। तो ये सारा कॉर्टिजोल लेवल 6 बजे के बाद होता है, तो तभी 6 बजे के बाद हमको फिजिकल एक्सरसाइज करना है। मतलब सूर्योदय होने के बाद फिजिकल एक्सरसाइज हमको करना है और 6 शाम में हमको फिर भोजन करना है। ठीक है। तो अभी हैप्पी हार्मोन्स हमारे बढ़ाने, हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं जो डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ये सारे लोगों को हमको बढ़ाना है। ये नॉर्मली हम लोग जो यूट्यूब है, फेसबुक है या व्हाट्सएप है या टेलीग्राम है, ये सारा ये हैप्पी हार्मोन बढ़ाते हैं। कैसे? डोपामिन। डोपामिन कब हमको इंक्रीज होता है? व्हेन वी गेट अप्रिशिएटेड, कोई हमको नहीं अच्छा बोले, कुछ अप्रिसिएशन हमको दे तो डोपामिन इंक्रीज होता है। कोई काम हम पूरा कर ले तभी डोपामिन रिलीज होता है। या शॉपिंग करने के लिए हम जाएं तो डोपामिन रिलीज होता है। या मूवी देखने के लिए हम जाते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है, इसलिए हमको अच्छा लगता है। सेरोटोनिन कैसे इंक्रीज होएगा?
आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हो, नेचर के लिए है, पेट्स के लिए है, सोसाइटी के लिए है, या कोई इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट पे दे रहे हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो तो 4 लोगों को अच्छा लगेगा, या कोई क्वेश्चन आप आंसर कर रहे हो सोशल मीडिया पे, उससे सेरोटोनिन हमारा बढ़ता है। तो आपके डे टू डे एक्टिविटी में ये सारा हमको रहना चाहिए। डेली हमको अप्रिसिएशन करना है, हमारे काम पूरे करने हैं, उसकी वजह से हमारा डोपामिन बढ़ेगा। हाँ, डेली शॉपिंग नहीं करना है। और सेरोटोनिन, हम दूसरों को हेल्प करें एक पूरे दिन में, उसकी वजह से हमारा सेरोटोनिन बढ़ता है। ऑक्सीटोसिन, हम पेट्स के साथ या हमारे लव्ड वंस के साथ हम बात करते हैं, हैंड शेक करते हैं, हग करते हैं, तो ये सारे से ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। एंडोर्फिन्स हमको पेन कम करता है, और उसको बढ़ाने के लिए हमको एक्सरसाइज करना है, हमको लाफ्टर या कुछ भी कॉमेडी, कुछ भी हमको देखना है, खुशी खुशी रहना है, हंसते रहना है। ये सारा अगर बैलेंस में है तो हमारा पूरा हार्मोनल सिस्टम सही रह जाता है। तो ये हमको, ये सारा हमारे डे टू डे इसमें अपने को करना है। तो पॉजिटिव लाइफस्टाइल, पॉजिटिव अप्रोच, रिमेन स्ट्रांग। ठीक है, कभी कभी फेलियर हो गया तो उसमें ये नहीं करना है, क्योंकि वो भाग्य में भी रहता है, भाग्य के हिसाब से भी, हमारे कर्म के हिसाब से भी होता है। तो भी हमको हमारा पॉजिटिव लाइफस्टाइल और पॉजिटिव अप्रोच रखना है, फेथ रखना है भगवान में, होना है होएगा, उसके हिसाब से हमको चेंजेस करना है। बार बार मैं बोल रहा हूँ ग्रेटिट्यूड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपने देखा वो 900 हर्ट्ज के ऊपर है। इट इज वेरी नियर टू द गॉड फ्रीक्वेंसी। तो एवरी टाइम आपको, एवरी आवरली आपको अपने आप को चेक करना है, 5 मिनट अपने आप को ध्यान देना है। एक रिमाइंडर रखा जाए, रिमाइंडर रखने के बाद उसमें जब भी अलार्म बजता है तभी आप क्या सोच रहे हो उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। अगर आप नेगेटिव सोच आ रही है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो और ग्रेटिट्यूड आप दो, तो आपका वाइब्रेशन बढ़ेगा। रीड पॉजिटिव थिंग्स इन द मॉर्निंग एवरी डे। सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ने से अच्छा है, कुछ अच्छा अपने थॉट्स के लिए कुछ अच्छा चीज पढ़ो। जैसे ब्रह्म कुमारी में हम मुरली पढ़ते हैं डेली, तो उससे आज के दिन के लिए हमारा माइंड फ्रेश होता है। आज हमारे माइंड को कुछ काम रहता है कि आज ऐसा रहूं और मेरे में चेंजेस हो। डेली हमारे में थोड़ा थोड़ा चेंजेस हमको इम्प्रूवमेंट में होना जरूरी है। अफर्मेशंस, अफर्मेशंस मतलब अभी नहीं, जब भी मेरा एम्ब्रियो बहुत अच्छा होएगा, मुझे अभी इम्प्लांटेशन उधर जाके वो कर सकेगा, मैं माँ बनूंगी, ऐसा सारा अफर्मेशंस आपको बना के डेली आपको 15 मिनट आपको रिवाइज करना है मेडिटेशन के बाद। बी विथ योरसेल्फ, हम दूसरों के साथ सुबह से शाम तक रहते हैं, पर अपने साथ हम बहुत कम रहते हैं। तो हम हमारे साथ रहें, हमारे हमारा हमारा प्रॉब्लम्स क्या है, हमारा बॉडी हमको बोलता रहता है, वो हम समझे और उसको। कभी कभी काफी लोग, मैं कैंसर का सर्जन भी हूँ, तो काफी लोगों को स्टेज 4 में कैंसर में पता चलता है कि ऐसा ऐसा हुआ। अगर वो मेडिटेशन रहे या अपने साथ रहे तो बॉडी हमको इंफॉर्मेशन बहुत पहले दे देता है, जो हम पिक नहीं करते, क्यों, हमारे साथ हम नहीं रहते। तो एक दिन में 10 से 15 मिनट हम लोग ये करें। वॉच योर वाइब्स अवरली, अपने वो मैंने बोल दिया आपको पहले भी, घंटे घंटे में कराएं। बिकम कॉन्शियस ऑफ अबाउट योर थॉट्स, आपका थॉट पैटर्न कैसा है, आप कैसे सोचते हो, मतलब नेगेटिव सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, न्यूट्रल सोचते हो, आपका पर्सनालिटी कैसे आपको समझ में आने लगा। डेली आप लिखना चाहिए, सेल्फ ऑडिट मैं बोलता हूँ। सुबह से शाम तक आपने क्या किया, आपको डोमिनेंट थॉट्स, ज्यादा थॉट्स कौन से टाइप के आए थे आज, तो उसके हिसाब से आपको समझ में आएगी कि आप कौन से टाइप के पर्सनालिटी हो। वॉट यू थिंक से एंड फील बिकम्स योर रियलिटी, मतलब आप क्या सोचते हो, आप क्या बोलते हो और क्या महसूस करते हो, वो आपका रियलिटी होता है। ठीक है, तो ब्लड पीएच हमको 7.35 से 7.45 में रखना है, इसलिए हमको एसिडिक ज्यादा हमको नहीं खाना है, वो रखने से एम्ब्रियो डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो अभी हम स्पिरिट पे आते हैं। अभी हमने बॉडी देखा, अभी माइंड का देखा, हैप्पी हार्मोन्स का देखा, और बाद में हम स्पिरिट के बारे में सोचते हैं। अभी हम क्या करें, अगर हमको स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ये हो रहा है, तो हमको और कोई ऑप्शन नहीं, हम सोल कॉन्शियसनेस में रहना बेटर है। किसी को भी ऐसा नहीं रहेगा कि मुझे थोड़ा ही हैप्पीनेस चाहिए, थोड़ा ही पीस चाहिए, थोड़ा ही लव चाहिए। ये जो भी एटर्नल क्वालिटीज ऑफ सोल है हमारे हमारे सब पूरा सब सब लोगों का सोल के अंदर ये सब है।
उसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स हम लोगों ने हमारे बिलीफ सिस्टम के हिसाब से वो लेयर हमने बना के रखे हैं। अगर वो लेयर्स हम निकालना है तो हमको ओरिजिनलिटी में हमको अगर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लेयर निकल जाता है। जैसे हम राज योग करते हैं तो धीरे धीरे हम डेली अपने आप को याद करते हैं कि हम सोल हैं, तो धीरे धीरे हमारा जो पहले का सोल का क्वालिटीज था वो उभर के आने लगते हैं। जैसे हनुमान जी को उनको याद दिलाया था कि आप लांग सकते हो, इधर से उधर तक जा सकते हो, आप बचपन में इधर से सूरत तक आप जा सकते थे, ऐसा उनको याद दिलाने के बाद वो स्टार्ट हो। ऐसे ही हम हमारा मेडिटेशन हम करते हैं, वो करते हैं तो हमको अपना पूरा ओरिजिनल रूप समझ में आने लगता है धीरे धीरे। जैसे हमारा ओरिजिनल रूप क्या है सोल का, पीस है, शांति, हैप्पीनेस, खुशी, ब्लिस, बहुत ज्यादा खुशी, प्यार, लव, नॉलेज, प्यूरिटी। प्यूरिटी मतलब क्या, थॉट्स में, डीड्स में और एक्शंस में। जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं वो, और हम एक्शन लेते हैं, ये सारा चीज कर्म, ये सारा प्योर होना जरूरी है। एक सोचा, दूसरा बोला, तीसरा किया तो नहीं होगा। ये सारे हम अगर लेवल में बराबर रखते हैं तो हमारे हार्मोन लेवल्स करेक्ट रहेंगे। और पावर, पावर मतलब झगड़ने का, मारने का ऐसा पावर नहीं है। पावर के बारे में हम अभी थोड़ा जानते हैं, क्या पावर है हमारे सोल के, पावर्स क्या है। तो 8 पावर्स ऑफ सोल, हमारे सोल में 8 पावर्स है। कैसे, पावर टू अकोमोडेट, पावर टू अकोमोडेट मतलब समाने की शक्ति, सबको हमको समाना है। हमारे जैसे, हम जैसे बोले वैसा सब लोग नहीं करते हैं। वो अलग आत्मा है, उनका एक्सपीरियंस अलग है, उनका अपब्रिंगिंग अलग है, उनके पास्ट कर्मा अलग है, उसके हिसाब से वो अलग है। वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में उनको एक्सेप्ट करो। पावर टू अकोमोडेट इज समाने की शक्ति। पावर टू टॉलरेट, पावर टू टॉलरेट मतलब क्या, कि आप बात नहीं करोगे, आप कहे खाली सहोगे, वो नहीं। आपको रिस्पॉन्ड करना है, आपको बोलना है कुछ तकलीफ हो रही है, पर दूसरों को तकलीफ नहीं, या दूसरों को हम लोग पेन दे के या हर्ट करके बोलना नहीं, प्यार से हमको बोलना है। और हम कर्म भी नहीं करें, हम उनको समझा के बोलना है। और खाली सहन नहीं करना है, मतलब ये सहन करने की शक्ति है। पावर टू फेस, पावर टू फेस मतलब सामना करने की शक्ति। सामना करना मतलब क्या, लड़ना नहीं। सामना करना मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है, अगर हमारा ट्रूथ है, हमारा वर्ड्स, हम जो बोलते हैं, सोचते हैं, वो करते हैं सेम रहा, तो अपने आप ही हमको सामना करने की शक्ति आ जाती है। तो हम कभी भी क्लियर रहे कि हम कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। पावर टू पैकअप, दैट इज समेटने की शक्ति। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ रहता है, कुछ एक दूसरे को मुटाव हो जाता है, मन मुटाव वगैरह कुछ, एक जन दूसरे को कुछ ना कुछ सुनाता है, तो एक एंड हमको कराना है। पहाड़ को राई बनाना है, राई को रुई बनाना है, वैसा छोटा करके हमको एंड करने के लिए आना चाहिए। और उसके बारे में हमको सोचने का और बाद में सोचने का जरूरत नहीं, एक बार एंड कर दिया खत्म हो। जल्दी उसको वाइंड अप करो, समेटने की। जितना उसको बढ़ाते जाओगे, उतना सोचते जाओगे, उतना आप ज्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन सामने वालों को भेजेंगे और अपना रिलेशन और ज्यादा खराब होता है। पावर टू डिस्क्रिमिनेट मतलब परखने की शक्ति। इसमें परखना मतलब क्या, दूसरों को परखना नहीं है, खुद को परखना है। और अगर कुछ आपको डिसीजन लेना है, कुछ है उसमें दो टाइप का, एक डिसीजन के लिए दो अच्छे राइट वेज, देयर आर 2 राइट वेज, उसमें भी अच्छा कौन सा है वो आपको परखने के लिए आपको आता है। वो हमारे इनबॉर्न है, हमारे सोल में वो है, पर उसको हमको जगाने की, निर्णय करने की शक्ति। पावर टू जज, पावर टू जज मतलब अभी हम लोग क्या करते हैं, सुबह शाम तक दूसरों को जज करते हैं। ये पावर टू जज इज जज आवरसेल्फ, अपने आप को जज करना है। हमारे थॉट्स क्या हैं, हमको चेक करना है, हमको चेंज करना है, और दूसरों में अच्छाई देखनी है, ना कि बुराई देखनी है। तो ये जज अपने खुद को करना है, ये हमारे सोल में ये बहुत बड़ा पावर है अपने आप को चेंज करने की। पावर टू कोऑपरेट, सहयोग देने की शक्ति। हम लोग किसी को अटेंशन देना, उनको टाइम देना, अपना एक्सपीरियंस से उनको सिखाना,
दूसरों के लिए हम काम करना, उनके साथ काम करना, ये पावर टू फॉरवर्ड, इसकी वजह से हमारा सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है। ये सब साइंटिफिक वे में है और ये सारे हमारे सीड में कभी भी है। अगर हमारा सीड बरोबर हो गया तो फिर हमारे एम्ब्रियो तो सही होना ही है ना, ऑप्शन ही नहीं है कि वो फेल हो। पावर टू विड्रॉ, विस्तार को संकीर्ण करना है, बड़ा कुछ करके उसमें उलझ के बहुत सारा काम, वो ये जो अपने हाथ में नहीं होता है वो छोड़ के यही हम करते हैं, उसको समेटने के लिए हमको आना चाहिए। जितना विस्तार है, टेंशन लेके बहुत सारा बढ़ा के बाद में वो आपको हैंडल करना नहीं हो रहा है, उतना भी नहीं करना है। जितना आपसे होता है उतना करना है और थोड़ा पीछे हट के एक बार देखना जरूरी है, साक्षी भाव कि हम कर क्या रहे हैं, ये ड्रामा है, हम कर क्या रहे हैं पूरा दिन में। थोड़ा पीछे हट के देखो किस लिए हम भागदौड़ कर रहे हैं, क्यों हमको स्ट्रेस है, ये सारा जरूरी है काम को। इसकी वजह से हम लोग स्ट्रेस ज्यादा होने की, जैसे आपने देखा कि एक स्लाइड में था 93% चांस है कि प्रेगनेंसी नहीं हो, एम्ब्रियो सही नहीं हो, वो चांस बहुत रहता है। तो हमको डिटैचमेंट डिटैचमेंट में रहना। अभी हम जो बहुत अटैच रहते हैं हमारे फैमिली मेंबर से, उनको कुछ तकलीफ हो गया तो हम उनसे ज्यादा हमको तकलीफ होने लगती है, वो हमको नहीं होना चाहिए। उनको जब भी तकलीफ है तभी अगर हम स्टेबल हैं तो उनको हम हेल्प कर सकते हैं। जैसे एरोप्लेन में लिखा रहता है कि कभी भी ऑक्सीजन का जरूरत पड़े तो पहले खुद लगाना और बाद में बच्चे को लगाना, है ना? क्योंकि पहले आप सही हो तो दूसरों को आप हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारे पावर्स हमारे सोल में है, ये सारा हमको बढ़ाना है तो हमको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन करने के बिना कोई ऑप्शन हमको है नहीं, और हम खाली सोचने से ये चेंज नहीं होता है, ये डीप रूटेड रहता है और ऊपर का जो हमारे लेयर्स निकालने के लिए हमको मेडिटेशन हेल्प करता है। तो इसमें हम लोग मेन क्या करते हैं, राजयोग करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में हम लोग पिछले 15 सालों से ये करा रहे पेशेंट्स को। हमारा आईवीएफ सेंटर है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं 3-3, 4-4 बार, 5-5 बार फेल होके। बहुत लोगों को 4-4, 5-5 बार अबॉर्शन होके आए रहते हैं। उनको हम लोग पहले तो उनका ब्रेन और हार्ट का कोरेंस लेवल देखते हैं कि उनका स्ट्रेस लेवल क्या है। 5 मिनट उनको मेडिटेशन करा के उनका ब्रेन कैसे काम कर रहा है, कहाँ सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब हमको समझ में आता है। कितना परसेंट वो समाधान में, वो हमको समझ में आता है, वो हम देखते हैं। नाड़ी परीक्षा हम करते हैं, नाड़ी परीक्षा करके उसमें हम देखते हैं कि उनके 5 एलिमेंट्स में क्या प्रॉब्लम है, 7 धातु में क्या प्रॉब्लम है, वात पित्त कफ में क्या प्रॉब्लम है, उनके ऑरा में क्या प्रॉब्लम है, उनके चक्रा में क्या प्रॉब्लम है, वो सब। ये सब देखने के बाद बाकी का जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स है वो सब हमको रिलेट करते हैं। उनका स्ट्रेस हम कम कराने के लिए उनको मेडिटेशन वगैरह करते हैं, उनको मुरली सुनने के लिए बोलते हैं, और उनके घर वालों से हम लोग बात करते हैं कि उनको क्या भी इमोशनल प्रॉब्लम है उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। उनका क्या क्या इमोशंस है उसके हिसाब से उनको समझाते हैं, और आगे कैसा रहना चाहिए उनको फैमिली के साथ, फैमिली वालों में क्या क्या चेंज होना चाहिए वो सब उनको समझाते हैं। तो ये प्रोसेस है कि उनको 1-2 महीने के लिए हम लोग ये इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उनका एनर्जी लेवल इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम लोग हेल्प करते हैं। तो उससे बहुत सारा हमको ये लगता है कि अभी अभी रिसेंटली हमने ये किया था, बहुत थिन एंडोमेट्रियम था, मतलब वो ऐसा नॉर्मल देखे तो होना ही नहीं चाहिए उसको प्रेगनेंसी, चांस ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। तो काफी मैंने उनको समझाया, वो बोले कि नहीं नहीं चाहिए, वो करना है। तो ये सारा हमने उनको बोला, ये सब करने के लिए बोला, तो धीरे धीरे होके फिर हमने किया तो उनको प्रेगनेंसी हो गई। काफी जगह पे काफी लोग बोले कि आपको नहीं होएगा, पर उनको हो गई। और इसमें मैंने एक है कि जिसको भगवान के ऊपर ज्यादा फेथ है और होएगा ही ये, उनको होना बहुत मैंने मेरे पेशेंट्स में देखा। क्योंकि एक पेशेंट एक आर्मी में था, उसको नहीं हो रहा था, बार बार फेल हो रहा था। वो हमारे हॉस्पिटल से आई थिंक 500-600 किलोमीटर कुछ दूर रहता था। उसने आर्मी रिजाइन कर लिया और फिर इधर ही आया। वो बोले बच्चा होने के बाद ही मैं ये गांव से जाऊंगा। तो एक रेंटेड एक फ्लैट लिया और इधर ही रहा। और वो कंसीव हुई, उसके बाद बच्चा होने के बाद जैसे मतलब जिद जिद पकड़ के हम अगर करते हैं और जो भी हमारे एनर्जी है पूरा लेवल उसके ऊपर हम अगर डालते हैं तो ही हमको सक्सेसफुल मिलेगा। स्पेशली जिसको फेलियर्स हुए हैं और एक बार वही स्टेज है वैसा ही हम लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कुछ मतलब नहीं। हमको हमारे एनर्जी लेवल पे एक्ट करना जरूरी है।
खाली डॉक्टर के ऊपर आप डालोगे तो नहीं होगा, क्योंकि आपके इमोशन और स्ट्रेस या जो भी लेवल है वो डॉक्टर चेंज नहीं कर सकता है, वो आपको ही चेंज करना है। और कोई हमको ऑप्शन नहीं है कि हम जब तक हम लोग हमारा एनर्जी लेवल्स ठीक नहीं करेंगे, प्रेगनेंसी हमको आने का चांस नहीं। अगर प्रेगनेंसी हो भी गया तो भी अबॉर्शन होने का बहुत चांस रहता है। और वो बच्चा मंद बुद्धि वाला है या कुछ भी अपंग है, अपाहिज है, ऐसा कोई भी स्ट्रेस में अगर रहते हो तो होने का चांस रहता है। तो अगर हमको बहुत स्वस्थ, सुंदर, अच्छा, इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए तो ये सब हमको करना जरूरी है। जो हम खाते हैं भोजन, उसमें प्योरिटी, हमारे थॉट में प्योरिटी, हमारा विचार में प्योरिटी, हम दूसरों का हार्म नहीं करें, ऐसे कुछ अपने पूरा ऑरा हम डेवलप करते हैं तो हमारे यहाँ भगवान की कृपा तो होती है, परमात्मा की कृपा होती है, और हमको उससे आराम से हम लोग बाहर निकल सकते हैं हमारे प्रॉब्लम से। और राजयोग में अभी काफी सारे टाइप के मैंने मेडिटेशन सिखा के देखे, बहुत। मैं भी बचपन से 5th स्टैंडर्ड से मैं मेडिटेशन मैं प्रैक्टिस करता था, बहुत सारे टाइप के। पर राजयोग में मैंने काफी देखा है कि जो हम लोग सोचते हैं कि नहीं होगा, वैसे बहुत सारे केसेस पॉजिटिव हुए हैं। और एक एक मेडिकल कॉलेज में एक गायनेकोलॉजी का एचओडी, उनका रिलेटिव, वो गायनेकोलॉजिकल एचओडी, उन्होंने 6 बार ऑपरेशन किया उनको, मायोमेक्टमी वगैरह, उनको उनको फाइब्रॉइड मल्टीपल थे वगैरह। उनको बोला गया है कि आपको बच्चे होंगे ही नहीं जिंदगी में। वो शादी होके एक 20 साल के बाद हमारे पास वो आए, नहीं एक ट्राई करते हैं, उनको ट्विंस हो गए। तो ऐसा चांस नहीं है कि नहीं होता है, क्योंकि वो डॉक्टर वो लेवल पे, मेडिकल साइंस लेवल पे सोच रहे हैं। हम लोग साइंस से परे का सोच रहे हैं। तो साइंस से परे भी अभी ऐसा चीज है कि साइंस कितना भी आगे बढ़ जाए, आप अभी तक ओनली 5% उसको समझ में आया है कि क्या है, रीत क्या है। पर पूरा यूनिवर्स को वो साइंस अभी तक समझ में नहीं आया उसको। तो हम खाली साइंस के ऊपर नहीं जाए, फेथ के ऊपर जाए, हमारे एनर्जी लेवल के ऊपर जाए। और जो भी अभी ये श्रृंखला में आपको सिखाया जा रहा है, उसको पूरा करो, उसको उपयोग ले। और आपके साथ आपके जैसे कोई भी ऐसा जो है, जो इनफर्टाइल है, उनको भी हेल्प करे तो आपका ज्यादा चांस रहेगा। जैसे आप दूसरों को हेल्प करने के लिए जाते हो, सिखाने जाते हो, तो आपको तो मिलेगा ही, है ना? क्योंकि भगवान है, वो देख रहा है कि ये बच्चे को चाहिए और ये दूसरों को भी हेल्प कर रहा है, तो एनर्जी लेवल आपका भी बढ़ जाएगा। तो आप ये देखो, और आप अपने बॉडी को डेली अपने साथ रहो, सोचो वो क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। आपको कुछ तकलीफ है तो भी बोलेगा, आप खुश हो कि नहीं अंदर से वो देखो, आपका स्ट्रेस कितना कम हुआ वो देखो। ये जो भी पॉइंट्स है सारा अपने लाइफ में उतारो। क्यों एम्ब्रियो आपका डेवलप अच्छा नहीं होता वो देखेंगे। बाकी ये सब आप अगर करोगे तो चांस ही नहीं है कि आपको बच्चा होएगा ही नहीं, ऐसा चांस ही नहीं। ओके, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू टाइम है सो तो मच टाइम सर। है तो मेडिटेशन भी करा सकते हैं। पर हाँ किसी जी, का हाँ जी, करा सकते। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि और 5 मिनट ही है, 4 मिनट है। राइट। हाँ? कोई भी पार्टिसिपेंट्स अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या अनम्यूट का ऑप्शन हम देंगे तो आप अनम्यूट भी करके पूछ सकते हैं। नो सर, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन आज के सेशन से हमें बहुत कुछ गाइडेंस मिला, जैसे जो आईवीएफ है उसके साथ साथ हमें अष्ट शक्तियां कैसे यूज करनी, या होलिस्टिक आईवीएफ कितना इंपॉर्टेंट है, या स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन से ऐसे बहुत सारे केसेस जो मिरेकल है वो हो सकते हैं। तो मेडिटेशन इज द प्रायोरिटी, ये हमने आज के सेशन से सीखा। तो सर आप अगर मेडिटेशन कराएंगे तो उसके साथ ही हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। उसके पहले मैं जस्ट कल के सेशन का अनाउंसमेंट कर दूं। ठीक है, ठीक, ठीक है। ओके, कल का हमारा सेशन रहेगा, कल का सेशन टॉपिक है गॉडली वर्शंस एंड इंस्पिरेशन, जो अव्यक्त मुरली है, जो अभी आपने सुना
कि मुरली है जो ब्रह्मा कुमारी इसमें फॉलो की जाती, जहाँ से पॉजिटिव थॉट्स हमें मिलते हैं। वो क्या है, कैसे वो सेशंस होते हैं, उसके बारे में कल हम डिटेल जानकारी लेंगे। तो आज का हमारा सेशन यही कंप्लीट होता है। सर बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतने अच्छे रीति से और वंडरफुल रीति से हमें गाइड किया। और उसी के साथ सर अभी हमें मेडिटेशन भी कराएंगे, और अगर टाइम बचता है तो फिर सॉन्ग भी प्ले करेंगे। 5 मिनट, हम ज्यादा नहीं। सॉन्ग प्ले करेंगे अगर अपना इमोशन ओके सभी हमको ये निकालना है इसे, 5 मिनट, उससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ओके, थैंक यू सर। म्यूजिक सुनाई दे रहा है? अभी नहीं, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ जी, अभी सुनाई। यस। तो अभी सब लोग अपने आंखें बंद करेंगे, अपने सांस के ऊपर ध्यान देंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आप ले रहे हो, सांस आप छोड़ रहे हो, आपको पता चलने के बिना एक भी सांस अंदर नहीं आई है या बाहर जाना है। पूरा सांस के ऊपर ध्यान दो। आपके शरीर का सब तनाव सांस से बाहर जा रहा है। परमात्मा आपका आशीर्वाद कर रहे हैं। उनकी शक्ति आपके शरीर पे एक फव्वारे की तरह गिर रही है। आपके शरीर के अंदर परमात्मा की शक्ति संचालित कर रही है। आपके भ्रुकुट के पीछे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको परमात्मा का शक्ति से स्टिमुलेशन मिल रहा है। आपके जो बॉडी के हार्मोन्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स है, उसका रिलीज अच्छा हो रहा है। वो हार्मोन्स धीरे धीरे यूट्रस के और ओवरीज पे जा रहे हैं। ओवरीज में, यूट्रस में और रक्तनाल में कोई भी ब्लॉकेज है, वो सारा परमात्मा की शक्ति से निकल रहा है। रक्त संचलन यूट्रस और ओवरी में ज्यादा हो रहा है। जो भी हमारे कण कण में स्ट्रेस है, वो सारा परमात्मा की शक्ति की वजह से हमारे कण से बाहर निकल के बाहर हमारे बॉडी से जा रहा है। जो भी द्वेष है, ईर्ष्या है, गुस्सा है, कोई और इरिटेशन है, सारा चीज जो हम पकड़ के रखे इतने सालों तक, सारे इमोशंस बाहर परमात्मा की शक्ति वो सारे इमोशनल ब्लॉकेज को निकाल रही है। हमारा शरीर एक नवजात बच्चे की तरह हो रहा है। हमारा मन एक छोटे बच्चे जैसा प्योर हो रहा है।
हृदय में परमात्मा का प्यार भर रहा है और प्यार हमारे रक्तनली से हमारे सब कोशिकाओं में जाके पहुंच रहा है। तो प्यार की किरणें हमारे शरीर से हमारे ऑरा में बाहर निकल रही हैं। आप जहाँ बैठे हो रूम से बाहर निकल रही है। अपने घर में सब जगह प्यार की शक्ति फैल रही है। अपने गांव में सब जगह ये फैल रही है। अपने देश में ये सब जगह फैल रही है। ये पूरे दुनिया में फैल रही है। सब लोगों को जिसको हमने दुख दिया आज तक उनको हम माफी मांगेंगे, उनको ये प्यार का वाइब्रेशन दे देंगे। या जिन्होंने हमको दुख दिया है उनको भी ये प्यार का वाइब्रेशन दे देंगे। आज से हमारा पास्ट हम भूल जा रहे हैं। उनको परमात्मा का आशीर्वाद सदा है। हम वापस हमारे शरीर में आ रहे हैं। हमारे पिता से जो किरणें आ रही हैं हम महसूस कर रहे हैं। हमारे बॉडी का वाइब्रेशन अभी बढ़ गया है। हमारे इमोशन सारे निकल गए हैं। हमारा रक्त संचलन इम्प्रूव हो गया है। हमारे बॉडी के सारे कोष फिक्स हो गए हैं, आराम हो रहे हैं। हार्मोन लेवल पूरा नॉर्मल हो गया है। परमात्मा को एक बार हम थैंक्स बोलेंगे। और धीरे धीरे आपको लगे तभी आप अपने आँख खोल सकते हो। ओम शांति। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु
खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाते हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाते हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। नीत मेरे तुमसे ही पाई प्रभु प्रीत है, तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। नीत मेरे तुमसे ही पाई प्रभु प्रीत है, तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। सांसों के सरगम से आभार तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद।